قیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر جو آپ لوگوں سے ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ اس کی ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ترکی کی زمین بار بار ہل رہی ہے، اموات کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 4000 اور ان آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 5000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اور بعض ذرائع نے یہاں تک لکھا ہے کہ 7 سے 8000 کے درمیان اموات ہو چکی ہیں۔ 15000 زخمی ہیں اور 5000 سے زائد عمارتیں زمین دوز ہو چکی ہیں۔ اس کی تصاویر آپ دیکھیں گے تو دل دہلا دینے والی یہ تصاویر اور ویڈیوز جو نکل کر کے آ رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ہیبتناک ہیں، وحشتناک ہیں اور عبرتناک ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، کئی احادیث کے حوالے سے ہمیں یہ بارہا سننے کو ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے چھوٹی چھوٹی قیامت ہوں گی، اور بارہا بڑے بڑے علماء اکرام نے اس کو قرب قیامت کا زمانہ کہا ہے، اور بہت ساری جو پیشن گوئیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قیامت کے نزدیک جو ہونی ہیں، بڑوں کے علاوہ چھوٹے سب ظاہر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ معجزے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تباہی کے اس منظر کے درمیان میں ملبے سے بچے کے جنم ہونے کی بھی، ایک ماں بچے کو جنم دے کر کے انتقال کرنے کی خبریں آتی ہیں، جس کی ویڈیو اس وقت ایک بچے کو لے کر کے ایک شخص کو جاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا۔ دراصل ملبے کے درمیان میں ایک حاملہ ماں نے بچے کو جنم دیا اور پھر ماں کا انتقال ہوا۔ اس کے علاوہ ایک بچے کو زندہ ملبے سے نکالنے کا یہ منظر بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ دراصل ہم لوگ ویڈیوز دکھانے میں زلزلے کی اس وجہ سے پرہیز کر رہے ہیں کہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو ویڈیوز دکھائی گئی تھی مارننگ پرائم ٹائم کی، اس ویڈیو کو جو ہے عمر سے محدود کر دیا۔ بہت سارے چینلز دکھاتے ہیں لیکن اس پر کسی طرح کی پابندی نہیں کرتا، لیکن ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے یوٹیوب کمپنی والا پتہ نہیں چلتا۔ بہرکیف ہم تو کوشش کریں گے جتنا ممکن ہو سکے آپ لوگوں کے سامنے ساری تفصیلات لانے کی۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی اس وقت، کیا بتایا جائے۔ زلزلے کی شدت کا اندازہ آپ لگائیں، 7.8 تھی۔ اتنے شدید تھے کہ ہزاروں عمارتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ ترک انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 5606 عمارتیں منہدم ہوئیں۔ تباہی کا یہی منظر شام میں بھی دیکھا گیا۔ ملبے سے نکالے جانے والے زخمی احباب اور پھر بکھری ہوئی لاشیں۔ جو صورتحال اس وقت ترکی اور شام سے آ رہی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ پیر کی صبح 4:17 پر زلزلہ آیا اور شام کی سرحد سے 90 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ زلزلے کا مرکز غازیان ٹاپ ترکیہ میں 100 سال میں آنے والا یہ شدید ترین زلزلہ ہے ناظرین گرامی، اور لگاتار جھٹکے محسوس کیے۔ صبح بھی آیا اور شام میں آیا۔ صبح کی اس میں 2000 تک کی خبریں بتائی، پھر شام میں جو آیا اس کے بعد جو اموات کی تعداد 5000 سے زیادہ بڑھ گئی۔ بہرکیف ناظرین گرامی اس وقت ہندوستان سے بھی جو ہے یہ NDRF کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں۔ مختلف ممالک سے جو ہے وہ یہاں پر جو نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فورس ہے بھارت کی، جاپان میں بھی یہ خدمات انجام دے چکی ہے۔ امدادی ٹیم پہلی کھیپ لے کر کے جو ہے ترکی روانہ ہو چکی ہے، اور 51 رکنی ٹیم منگل کے اولین ساعتوں میں ہندوستانی فضائی کے طیارے میں غازی آباد کے
हिंदन हवाई अड्डे से तुर्की के लिए रवाना हो चुकी है और मज़ीद जो है जाएंगे। ये 100 एहलकारों पर मुश्तमिल न्यूयॉर्क की 2 टीमें खुसूसी तरबियत याफ्ता जो है वो डॉग स्क्वाड और ज़रूरी सामान के साथ तलाश और बचाव का काम करेंगी। अमेरिका से भी पहुंच रहे हैं, पाकिस्तान से भी पहुंच रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर जो तबाही है, जाहिर सी बात है कि जो है इतना बड़ा इस वक्त जो हादिसा पेश आया है तुर्की के लिए, पूरी दुनिया इस मनाजिर को देख रही है, अफसोस कर रही है और अफसोस होना भी चाहिए और बिलखुसूस मुसलमानों के लिए इबरत का मकाम है। क़ुर्ब क़यामत के इस ज़माने में अल्लाह ताला ने अलग अलग आजमाइशों से इंसान को गुजार रहा है। कोरोना वो भी एक क़यामत का ही मंजर था। उसके बाद जो इक़्तिसादी सूरत हाल और महंगाई बढ़ी है वो भी इसी जानिब इशारा करती है। और फिर वक्तन फ़वक्तन अभी भारत में हो या पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में और भी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में और यूरोपियन ममालिक में जंगलों में आग लगना, कहीं सैलाब, कहीं बर्फ़बारी की वजह से सूरत हाल बिगड़ना, भारत के मुख्तलिफ इलाक़ों में सैलाब का आना और उसमें जो है हज़ारों की जाने जाना और सैकड़ों करोड़ों रुपए की मालियात और इक़्तिसादी तौर पर नुकसान पहुँचना, तबाह बर्बाद, और इस सारी की सारी चीज़ें नाज़ गिरामी क़यामत से पहले छोटे छोटे क़यामत के मनाजिर हैं। और अक्ल रखने वाला इंसान और सच्चा पक्का मोमिन इससे इबरत लेता है और अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है। आइए नाज़रीन गिरामी अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं और ख़बरें जो इस वक्त आपके सामने रखनी है और वो ये है कि जो है भारत में ये जुल्म सितम का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जोशीमठ में भी क्या सूरत हाल बनी हुई है, दरारें, पूरी की पूरी ज़मीन धंसी जा रही है, हज़ारों लोग जो है बेघर हो चुके हैं और न नफ़रत का माहौल ख़त्म हो रहा है और न एक दूसरे पर हमला करने की सूरत हाल ख़त्म हो रही है। आज एक ऑटो ड्राइवर को मारने की बेदर्दी से एक वीडियो सामने आई और वो मार रहे हैं जीआरपी के नौजवान। नई सियासी तारीख रकम करने, अपनी पहचान बनाने, फ़िरक़ावारियत ख़त्म करने और कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए हमारी पार्टी से हाथ मिलाइए और मेंबर बनिए। स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर मिस कॉल दें। जो रेलवे स्टेशन के बाहर ड्यूटी पर मामूर रहते हैं, ऑटो ड्राइवर की बीवी उसे बचाने आई तो पुलिस वालों ने उसके साथ भी बदतमीजी करना शुरू की। ये सूरत हाल है। अभी तीनों नौजवानों को मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बुरी तरह से मारा जाए, वीडियो आप लोगों के सामने हम पेश नहीं कर सकते। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, भारत में ऊंच नीच का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में सिद्धारामैया एक तरफ ब्राह्मणों को निशाने पर लिए हुए हैं, पंडितों को निशानों पर लिए हुए हैं, तो कुमार स्वामी ने भी किस तरह बीजेपी एक ब्राह्मण को वज़ीर आला बनाने की जानिब गामजन है, उसकी साजिशें रच रही। इसको लेकर के इस वक्त लगातार कर्नाटक में ब्राह्मण, दलित और पसमानदा मुख्तलिफ किस्म के ज़ात पात को लेकर के इस वक्त तबसरे ज़ोरों पर हैं। कोई मुसलमान कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है, उनके आपसी बयानबाजियाँ हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में यूपी में भी आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ के वज़ीर ने जो एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था रामचरितमानस में से कुछ चीज़ों को हटाने के लिए, मौर्या का, और कल ने हमने आपके सामने ये खबर भी रखी थी। अब उन्होंने जो है चैलेंज किया है हिंदुत्व को और हुकूमतों को और बीजेपी को कि हिम्मत है तो अब मोहन भागवत को हटा करके दिखाए या मोहन भागवत के खिलाफ जो है कुछ ऐलान करके दिखाए। दरअसल मराठी ज़बान में बयान देते हुए मोहन भागवत ने एक खुसूसी इजलास में कल ऊंच नीच के बारे में बात की। उनकी वीडियो भी वायरल हो रही है और बयान भी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि बहुत सारी लंबी ऊंच नीच के सिलसिले में बात करते हुए कि किस तरह जो है ये ज़ात पात का मामला सामने आया, ऊंच नीच का मामला सामने आया। अगर कोई पंडित इस सिलसिले में ज़ात पात को बढ़ाता है, ऊंच नीच की बात कहता है, तो वो पंडित झूठा है, उसकी बात नहीं मानना चाहिए। ये बयान जारी किया था कल मोहन भागवत की जानिब से। जाहिर सी बात है कि आरएसएस के चीफ की जानिब से इस तरह का बयान आना पंडितों में और ब्राह्मणों के लिए, और पंडित के जो ओहदे पर होते हैं वो तो ब्राह्मण ही होते हैं और अपने आप को मानते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है बहुत ज़्यादा हालात बिगड़ते चले गए। अब बाज़ लोग मोहन भागवत के इस बयान को जो है उचक लिया है और उसको लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे कर रहे हैं। तो वहीं मौर्या ने कहा कि रामचरितमानस पर अपने तबसरे के बाद भारतीय जनता पार्टी हिंदू मजहबी रहनुमाओं के हमलों की जद में मैं आया था। अगर अब हिम्मत है तो मोहन भागवत के खिलाफ बयान जारी करके दिखाए, कहते हुए उन्होंने चैलेंज किया है। ज़ात पात के निज़ाम पर भागवत के बयान के बाद अब मौर्या ने धर्माचार्यों को चैलेंज किया
SP सरबराह अखिलेश यादव ने भी कहा कि वो बताएं कि ज़ात पात के हवाले से हकीकत क्या है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से पता चला कि जो है पंडितों की जानिब से, ब्राह्मणों की जानिब से ज़बरदस्ती जो है ये ऊंच नीच किस चीज़ ला करके ख़ुद को एक बड़े पोजीशन पर रखने के लिए इस तरह की साजिशें होती हैं। ये बात अब खुल करके जो है दलित बरादरी के सामने आ रही हैं और अब खुल करके इस सिलसिले में गुफ्तगू भी हो रही है और महसूस यही किया जा रहा है कि आने वाले इंतखाबात में या असम्बली इंतखाबात आ रहे हुए 2024 के इंतखाबात में ये ऊंच नीच और ज़ात पात का मामला बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, इसलिए कि इलेक्शन के करीब करीब RSS के मोहन भागवत का ये बयान और फिर लगातार जो ज़ैली तंजीमें और पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, चाहे कर्नाटक हो या यूपी हो या बिहार हो या दीगर रियासतों में, उन लीडरान की जानिब से वक्तन फ़वक्तन इस बात को लेकर के बयान देना, महसूस यही किया जा रहा है कि शायद बहुत सारे मुद्दे जहां पर उठाए जाएंगे, जैसे बाबरी मस्जिद को गिराए जाने और राम मंदिर को बनाने का मुद्दा, मुमकिन है कि जो है राम मंदिर के इफ्तिताह के साथ साथ 2024 के लिए यहाँ की मोदी हुकूमत या बीजेपी पूरी तरह से उसका फ़ायदा उठाए, तो वहीं पर ज़ैली तंजीमें ऊंच नीच का मामला उठा करके इस मामले को जो है बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर पेश करने की भी कोशिशें हो रही होंगी। इस तरह के अलग अलग तबसरे इस वक्त सुनने और पढ़ने को भी मिल रहे हैं, जैसा कि जो बयानबाजियाँ हैं वो भी यही कहती हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ। कल मैंने शिहाब चित्तूर के सिलसिले में कहा था कि जो है हमें जो है ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब यह ऑफिशियल बयान खुद जो है शिहाब चित्तूर के फेसबुक पेज से मिल चुका है। शिहाब चित्तूर वाघा बॉर्डर को जो है पार कर लिया है और वो इस वक्त जो है पैदल सफ़र हज की जानिब एक बार फिर रवा दवा हो चुके हैं, जो पिछले 4 माह से पाकिस्तानी सिफारत खाने से लाजमी सफरी कागजात मौसूल न होने की सबब थम गया था। मल्लापुरम से ताल्लुक़ रखने वाले शिहाब चित्तूर जिनकी उम्र 29 साल है, उन्होंने इतवार को अपने फेसबुक अकाउंट पर इस बात का ऐलान किया था कि पाकिस्तान से ट्रांसिट वीज़ा मौसूल हो गए हैं, जिसके सबब पीर की सुबह को पाकिस्तान की हद में दाखिल हो जाएंगे। और हुआ भी वही जिसका उन्होंने फेसबुक पर ऐलान किया और उन्होंने खुद जो है एक वीडियो वगैरह बनाई और उनकी जो है पाकिस्तानी झंडे के साथ एक जगह बैठ कर के चाय पीने की जो है वो वीडियो भी और उनकी तस्वीर भी पूरी तरह वायरल हो रही है। बह गए पंजाब में ट्रांसिट वीज़ा के इंतज़ार में गुज़श्ता 4 माह 9 दिन तक उन्होंने इंतज़ार किया। अमृतसर में आफिया किड्स स्कूल में मुकीम थे, यहाँ इजाज़त तो उन्होंने 3 दिन की ली थी, लेकिन वीज़ा का जो है पूरा प्रोसेस मुकम्मल ना होने की वजह से उन्हें स्कूल में 4 महीने तक रहना पड़ा। बह गए वो जद्दोजहद करते रहे और वो कामयाब हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है वो अब तक 3300 किलोमीटर पैदल सफ़र तय कर चुके हैं, जिसमें केरला से पंजाब तक 7 रियासतों का अहाता किया गया था। शिहाब जिसने 2 जून को मल्लापुरम से अपना 8640 किलोमीटर का सफ़र शुरू किया था, सितंबर में वाघा बॉर्डर के करीब पहुंचा, लेकिन उसके पास ट्रांसिट वीज़ा ना होने की वजह से सरहद पार ना हो सका। नाज़रीन गिरामी, कागजी तैयारी में इससे पहले निकलने से पहले भी उनको बहुत ज़्यादा जो है जद्दोजहद करनी पड़ी थी। 6 माह का लगे थे उनको मुख्तलिफ़ किस्म के जो है परमिशन लेने के लिए। और इससे पहले भी नाज़रीन गिरामी शिहाब चित्तूर को पैदल सफ़र हज के लिए इजाज़त देना वज़ारत ख़ारिजा के लिए बड़ा चैलेंज था। जाहिर सी बात है कि कोई पैदल चल रहा हो तो मुख्तलिफ़ इलाकों से गुजरेंगे, उनकी सिक्योरिटी का सिस्टम और उनको जो है रहने का और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने इसके लिए जो वज़ारत ख़ारिजा ने भी उनको पूरा सपोर्ट किया था इसकी इजाज़त देने से पहले। इस बात को मानना चाहिए, इसलिए इतनी आम सी बात नहीं थी कि अचानक कोई आदमी निकल जाए और 7-7 रियासतों का दौरा करे और हर रियासत में, हर शहर में जहाँ जहाँ वो रुक रहे हैं वहाँ पर उनका रिहाइश का इंतज़ाम हो, उनका इस्तकबाल करने वाले हों और पुलिस उनको पूरी तरह सिक्योरिटी फराहम करे। जब तक हुकूमत की वज़ारत ख़ारिजा या वज़ारत दाखिला उसको पूरा सपोर्ट नहीं करती, उस वक्त तो ये मुमकिन नहीं था। लेकिन शिहाब चित्तूर को जो है पूरी तरह से सपोर्ट मिलने की वजह से बारहा वो शुक्रिया अदा करते रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत पर पहले तनकीद की जाने लगी थी उनको इस तरह का वीज़ा ना देने की वजह से, लेकिन अब वीज़ा मिलने और फिर उनके वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान के ज़रिए से अब वो दीगर मुल्कों में भी पहुँचेंगे और फिर वहाँ से होते हुए वो जो है उनका एक बाकायदा एक ट्रैक बना हुआ है, वो किस मुल्क को किस वक्त पहुँचेंगे और वहाँ किस तरह उनका सफ़र होगा। जाहिर सी बात है इसकी पीछे पूरी टीम काम कर रही है। अल्लाह ताला जो है उनके सफ़र को कामयाब करे और उनको कबूल भी फरमाए, हम तो यही दुआ कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जो तनकीदें होती हैं, वो अल्लाह के हवाले। नाज़रीन गिरामी, इधर उदयपुर से खबर आ रही है कि बजरंग दल के कारकुन पर हमला किया गया है और उसको बहुत भयानक अंदाज में कत्ल कर दिया गया है और ये शूट करके कत्ल कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। राजस्थान के उदयपुर में मामला पेश आया और इसकी शनाख्त राजू परमार उम्र 38 साल के तौर पर कर ली गई है। अब मारने वाले रात के 8 बजे जो है वो
पूरी तरह से इस पर हमला किए थे। अब किस वजह से इस पर हमला किया गया, ज़ाती दुश्मनी थी या कोई और वजह थी, इसलिए कि जब कभी हिंदुत्व तंजीमों का नाम आता है, उससे जुड़े हुए कारकुनान का नाम आता है, तो उसको कोई और ही जो है रुख देने की कोशिशें होती है, चाहे वो ज़ाती रंजिश हो या कोई घरेलू रंजिश हो। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस जो है पूरी तरह तहकीक करके मामला सामने लाने की बात कही है, लेकिन पेशगी तौर पर जो है कुछ हिफाजती बंदोबस्त भी कर लिए गए हैं, इसलिए कि हिंदुत्व तंजीम से होने की वजह से बाज़ दफ़ा हालात बेकाबू हो जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 6 अफराद के ग्रुप का एक लग्जरी कार में बंदूकें रखने और मै नोशी करने और सड़क के दरमियान रक्स करने का वीडियो गश्त हुआ था, आप लोग जानते हैं। अब इस सिलसिले में जो है पुलिस ने कार के मालिक की शनाख्त कर ली है। इस मामले में इब्तिदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कार शहर के चिरंजीव विहार की मुतवत्तिन राजा चौधरी की मिल्कियत में है और चौधरी और वाकई मुलव्वस दीगर अफराद के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। वीडियो में ग्रुप के अफराद को कार के अंदर बैठे हुए देखा गया था और वो हथियारों के साथ रक्स करते हुए और अलग अलग तरह की जो है मुख्तलिफ किस्म की रक्स पेश करते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर कि जो है सोशल मीडिया में बड़ा हंगामा मचा था कि एक आम आदमी इस तरह हथियार रख करके अवामी सतह पर कार में सवार होकर के किस तरह से जो है रक्स कर सकते हैं। ये जो है अवामी सतह पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसको लेकर के अलग अलग लोगों ने तबसरा किया, तो अब जो है मामला दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा भी बढ़ा और मुतालबा बढ़ने के बाद जो इस सिलसिले में कार्रवाई करने की जो यकीन दहानी भी कराई गई है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कर्नाटक की जेडीएस की, जहां पर जो है यूटी फरजाना अशरफ को जो है वो रियासती सतह के पार्टी के तर्जुमान मुकर्रर कर ली गई हैं और एचडी कुमारस्वामी जो लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं जेडीएस के, उन्होंने जो है उनको नामजद करने का जो सर्टिफिकेट है बेंगलुरु में पीर के दिन उनके हवाले किया। इस तरह से फरजाना को जेडीएस का तर्जुमान मुकर्रर करने पर उनको मुख्तलिफ किस्म की मुबारकबादियाँ भी पेश की जा रही हैं और जेडीएस इस वक्त जो है पूरे कर्नाटक में अलग अलग अंदाज में मेहनत करके अगले असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारी में जुटी हुई है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।